Assalamualaikum everyone. This is your trainer Mohammad Ziab, and today we will talk about the Nibosh and the related terms. So, first of all, we will learn about Nibosh, what is Nibosh and what's its actual abbreviation. So, Nibosh stands for the National Examination Board in Occupational Safety and Health. It is UK-based examination board that offers globally recognized qualifications in health, safety and environmental management. Nibosh sets the benchmark for professional certificates in these fields, equipping individuals with the skills and knowledge to manage workplace health, safety and environmental challenges effectively. यानी कि अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो निबोश एक यूके बेस्ड इदारा है जिसका काम है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना और उसमें लोगों को स्किल्स देना और उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना. Now, in this lecture, we will talk about the basic terms in the Nibosh like health, safety and welfare, PPE, personal protective equipment, SSOW, safe system of work, PTW, permit to work, TBT, toolbox stock, ILO, International Labour Organization, reader, reporting of injuries, disease and dangerous occurrences regulations, MSDS, material safety data sheet. So these topics we will cover in our today lecture. So the first one is health. What is health? Health is a state of full well-being in its physical, mental and social form rather than a non-disease uninfirmity state. Health क्या है? Health आपके physical, mental और social well-being को कहते हैं कि आप mentally भी ठीक है, physically भी ठीक है और socially भी ठीक है. और health सिर्फ ये नहीं है कि आपको बीमारी है या ये है. अगर आप mentally ठीक है, physically नहीं ठीक तो आपका health ठीक नहीं है. अगर आप physically ठीक है, mentally नहीं ठीक तो आपका health नहीं ठीक. So in short, health क्या है कि आपका physical well-being, mental well-being और social well-being. अब types of health. There are three types of health. Physical health, mental health, social well-being. In physical health means avoiding injuries like cuts, burns, fractures, preventing exposure to hazardous substances like asbestos, chemicals or radiations. Mental health means managing stress, workload and emotional well-being, preventing harassment, bullying and workplace violence. And the third one is social well-being. Social well-being means encouraging positive work relationship, supporting team collaboration and open communication. अगर उर्दू में हम इसको एक्सप्लेन करें तो फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि फिजिकल इंजरी से खुद को बचाना, जैसा कि कट्स हो गए, बर्न्स हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए, या इसके अलावा अपने आप को केमिकल एक्सपोजर से बचाना. इन शॉर्ट उन सारी चीजों से खुद को बचाना जो आपको फिजिकली आपको नुकसान पहुंचाती है. मेंटल हेल्थ का मतलब है स्ट्रेस को मैनेज करना, वर्कलोड को मैनेज करना, इमोशनल वेलबींग. इन शॉर्ट कि अपने वर्कर्स या वो काम करना जिसपे आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े, आपका वर्कलोड इतना हो कि आपके मेंटल हेल्थ को वो इफेक्ट ना करे. इसके अलावा हैरेसमेंट, बुलिंग और दूसरे जो काम की जगह पे नुकसान आपको हैरेसमेंट या किसी भी किस्म की चीजों का सामना करना पड़े, उन चीजों से खुद को बचाना इस और अपने आप को मेंटेन रखना, उसको मेंटल हेल्थ कहते हैं. सोशल वेलबींग में अपने काम की जगह पे या लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन रखना, इसको हम सोशल हेल्थ कहते हैं. अब आते हैं सेफ्टी की तरफ. सेफ्टी क्या चीज है? सेफ्टी इज द एब्सेंस ऑफ अनएक्सेप्टेबल रिस्क्स ऑफ इंजरी और हार्म. इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ हार्म ड्यू टू फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर वर्कप्लेस हैजर्ड. सेफ्टी क्या है? कि सेफ्टी ये है कि आप जहां काम कर रहे हैं या जहां रह रहे हैं वहां पे आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है, आपकी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं है, किसी नुकसान का खदशा नहीं है आपको. यानी आप हर किस्म के खतरे से बचे हुए हैं. अब खतरा किस किस्म का हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, या दूसरे हर वर्क प्लेस के हैजर्ड्स होते हैं, तो आप उनसे सेफ हैं. अब हमारे पास जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं. फिजिकल हैजर्ड्स इन विच वी हैव स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वर्किंग एट हाइट. मैकेनिकल हैजर्ड्स अनगार्डेड मशीनरी, पिंच पॉइंट्स, यानी कि किसी मशीनरी पे गार्ड मौजूद नहीं है, उसमें आपके फंसने या उससे आपको नुकसान का खतरा. इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एक्सपोज्ड वायरिंग, पोरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट. Chemical hazards, corrosive or toxic substances, inadequate storage or labeling. Biological hazards means bacteria, viruses and pathogens. अच्छा, अब फिजिकल हैजर्ड्स में आपके पास क्या आता है? स्लिप्स आते हैं, ट्रिप्स आते हैं, फॉल्स आते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, या कोई वर्क एट हाइट कर रहे हैं वहां से आप गिर जाए या कुछ. मैकेनिकल हैजर्ड्स में आपकी मशीनरी कोई अनकवर्ड है या कोई मशीनरी आपकी अनकवर्ड है और वो ये है कि उसमें आपके हाथ फंसने का, कपड़ा फंसने का या इंटेंगलमेंट का खतरा हो. केमिकल हैजर्ड्स किसी केमिकल की तरफ आपका एक्सपोजर होना जो आपको आपकी सेहत को नुकसान दे हो. इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने हैजर्ड्स है, एक्सपोज वायरिंग है, पोरली मेंटेन इक्विपमेंट है. और बायोलॉजिकल हैजर्ड में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड दूसरे पैथोजेंस आ गए. अब आते हैं वेलफेयर की तरफ. वेलफेयर क्या चीज है? वेलफेयर रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट द वेलबींग एंड कंफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज व्हाइल एट वर्क. वेलफेयर वो है कि आपके जो वर्कर्स है या आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां आपको बेसिक जिंदगी की सहूलियात आपको मुहैया की जा रही है. यानी अगर वो आपको मुहैया की जा रही है मींस आपको कंप्लीट वेलफेयर प्रोवाइड हो रहा है. अगर आपको मुहैया नहीं की जा रही मतलब आपका जो वेलबींग वेलफेयर है वो आपका कंप्लीट नहीं है. अब हमारे पास वेलफेयर प्रोविजंस में क्या क्या आता है? सैनिटरी फैसिलिटीज, हाथ धोने की जगह, नहाने की जगह, ये सैनिटरी फैसिलिटीज में आ जाती है. ड्रिंकिंग वाटर, आपको पीने का साफ पानी मिल रहा है. रेस्ट एंड ब्रेक एरियाज, आपको काम के दौरान जब ब्रेक या रेस्ट मिल जाए तो उसके लिए आपको प्रॉपर जगह मिल रही है. फर्स्ट एड, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ कोई वाकया हो जाए तो उसके लिए आपके पास आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए. चेंजिंग फैसिलिटीज, कपड़े वगैरह, यूनिफॉर्म चेंज करने की जगह आपके पास आपको मौजूद है, आपको अवेलेबल. नाउ अब
हेल्थ क्या चीज है, सेफ्टी क्या चीज है, वेलफेयर क्या चीज है, इन तीनों का आसान अल्फाज में डिफरेंस बता देता हूँ। हेल्थ जो क्या करता है, हेल्थ इंश्योर्स एम्प्लॉयज आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। हेल्थ ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है, आपके वर्कर्स जो है, फिजिकली और मेंटली ठीक है। सेफ्टी कीप्स वर्कर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इमीडिएट हार्म। सेफ्टी का मतलब है कि आपके जो वर्कर्स है, इमीडिएट हार्म जो नुकसान है उनसे बचे हुए हैं। वेलफेयर मीन वेलफेयर एनहेंसेस कंफर्ट एंड डेली वेलबींग एट वर्क, यानी कि आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आप वहाँ पे कंफर्टेबल है और आपको जरूरत की हर चीज आपको मिल रही है। इन शॉर्ट, मैनेजिंग all these three health, safety and welfare reduces absenteeism, enhances productivity and fulfills legal and ethical obligation। अगर आप तीनों को अप्लाई करेंगे तो आपके जो वर्कर्स की एब्सेंटीज्म है वो कम होगी, यानी वो काम पे आएंगे, छुट्टियां नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी, उनके काम करने की सलाहियत बढ़ेगी और आपकी लीगल और एथिकल यानी मोरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर जो है वो भी फुलफिल होगी। नाउ next one is PPE, personal protective equipment. What is PPE? So PPE is the equipment you wear to minimize the exposure to hazards that can cause serious injuries and illness. These injuries and illness may result from contact with chemical, radiological, physical, electrical, mechanical, or other workplace hazards. Now, what should be there in personal protective equipment? It should generally include gloves, safety glasses, and shoes, earplugs or muffs, hard hats, respirators, vest, and full body suits. So there is a main point. Every workplace has their own PPEs according to the workplace demands. i.e. construction site requires their own PPE, mining site requires its own PPE, and oil and gas site requires different PPE. अगर उर्दू में हम इसको एक्सप्लेन करें तो PPE का मतलब है कि हर वो चीज जो आप अपने वर्क साइट पे पहनते हैं और वो आपको मुख्तलिफ हादसात से बचाता है, उसको हम PPE बोलते हैं। अब ये किस तरह आपको हादसात से बचाता है? ये आपको केमिकल हादसात से, रेडियोलॉजिकल हादसात से, फिजिकल हादसात से, इलेक्ट्रिकल हादसात से बचाता है। वो कैसे बचाता है कि अगर आपने वो प्रॉपर PPE आपने पहना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हार्ड हैट पहनी हुई, टोपी पहनी हुई, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कुछ ऊपर से आपके ऊपर गिरता है, तो अगर आपने हेड पहनी हुई है तो वो चीज आपके हेड के ऊपर गिरेगी और क्या हो जाएगा कि आपको जो है हेड इंजरी होने वाली थी उससे आप सेफ हो जाते हैं। और इसके अलावा हर वर्क प्लेस की अपनी पीपीई होती है, कंस्ट्रक्शन की अपनी पीपीई होती है, माइनिंग की अपनी पीपीई होती है, ऑयल एंड गैस की अपनी पीपीई होती है, क्योंकि हर जगह के डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं और जब हैजर्ड्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं तो हर हैजर्ड के लिए हमारे पास अपनी पीपीई रिक्वायर्ड होती है। सो दैट्स व्हाई एट एवरी वर्क साइट डिफरेंट पीपीई इज रिक्वायर्ड। Next one is what is SSOW, Safe System of Work. Safe System of Work क्या है? A safe system of work is defined as a procedure or a set of procedures for removing or reducing the risk involved in operation. In the workplace, it helps to ensure that employees don't get injured either by the equipment they use or through other means. Now, how can you write a safe system of work? There are 5 steps in writing safe system of work. Analyze all the tasks. Before writing safe system of work, you should analyze all the tasks you are performing at your workplace. Identify the hazards. Then identify the hazard. What hazards are there at your workplace? Identify safety precautions. That look at the safety precaution. What safety precaution you can take against these hazards? And then communicate with the company. Communicate with the company means communicate with the top management or your senior management regarding these hazards. And the last one is implement and monitor. Implement the safety precautions and monitor either they are effective or not. उर्दू में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका ये मतलब है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वो प्रोसीजर है या सेट ऑफ प्रोसीजर है जो आपकी काम वाली जगह से या तो रिस्क को टोटली रिमूव करता है या उसको कम करता है, और ये इस चीज को गारंटी करता है कि आपके वर्कर्स जहां पे काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो उनकी मशीनरी के थ्रू हो या और किसी चीज के थ्रू उनको नुकसान पहुंचे, उनसे उसको सेफ करने के लिए हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं जो एक्चुअली एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है या प्रोसीजर होता है। इसमें हमारे पास 5 चीजें होती है। सारे टास्क को एनालाइज करना, फिर हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बाद अपने टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस को अप्लाई करके चेक करना कि आइदर वो इफेक्टिव है या नहीं है। द नेक्स्ट वन इज PTW, permit to work. A permit to work system is a formal written process designed to control specific types of high risk activities. It requires workers to obtain approval before beginning work, ensuring hazards are identified, controls are in place, and relevant personnel are informed. Now, there are different types of activities for which we need PTW. First one is hard work, for example, welding, cutting, grinding. Confined space entry, electric work like live circuits, excavation, and trenching work at heights. These sort of activities required per PTW, permit to work, because these activities are high risk activities. Now, why use a permit to work system? What is the benefit of using permit to work system? So it prevents accidents and injuries, ensures proper planning before work begins, defines clear roles and responsibilities. Means that which person have
which sort of responsibility when they start working, and serves as a documentation in case of incident investigation. For example, if any incident or accident happens at the workplace, so it will serve as a documentation that you have completed all the documentation for the work and you have taken all the safety steps. In short, कि वर्क PTW जो है ये एक रिटर्न चीज है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो हम हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए लिखते हैं. ये हम तब लेते हैं जब हम कोई हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं, जैसे हार्ड वर्क हो गया, वेल्डिंग हो गई, कटिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो गई, इलेक्ट्रिक वर्क लाइक हम कोई लाइव सर्किट्स को टच कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं या वर्क एट हाइट कर रहे हैं. तो ये उसके लिए एक हम रिटर्न डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हमने काम शुरू करने से पहले ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं, ये हम करेंगे, काम के दौरान हम ये स्टेप्स लेंगे और काम के बाद ये करेंगे. इन शॉर्ट हमने उसमें प्रेजेंट करना होता है, बताना होता है कि हमने इस खतरे वाले काम के लिए सारे सेफ्टी स्टेप्स लिए हुए हैं और अब हमें इजाजत चाहिए ताकि हम इसको आगे प्रोसीड करें. तो इन शॉर्ट परमिट टू वर्क जो है ना, जितने भी हाई रिस्क काम है उनके लिए हम परमिट टू वर्क लेते हैं जिसमें हम अपना प्रोसीजर बताते हैं कि हमने इस तरह सेफली और इन प्रोसीजर्स के थ्रू ये काम चलाना है. Next one is, what is Toolbox Talk? So a Toolbox Talk is a short safety meeting or training session typically held before a work shift or task starts. It is usually held before starting your shift. Understand? It is maximum 15 to 20 minutes, and in this Toolbox Talk, you give guidance to your workers that we will be doing these things on our sites and we should avoid these things and we should do these things to keep safe ourselves and the workplace. A Toolbox Talk aims to raise awareness of potential hazards and promote safe working practices among employees. These talks are usually led by a supervisor or safety professional and are intended to be interactive and participatory. So these talks are usually led by supervisor, safety officer or manager, but generally these are carried out by safety officer. Why Toolbox Talks are important for safety? Toolbox Talk क्यों important है? इंक्रीज अवेयरनेस, अपने वर्कर्स में वर्क साइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको हैजर्ड से आगाह करना, उनको ये बताना कि आपने इस तरह सेफली बिहेव करना. रीइंफोर्स सेफ्टी रूल्स बिकॉज it is required by safety that you have to give toolbox talks and you have to make your workers aware. तो सेफ्टी रूल्स के रीइंफोर्स करना कि वो सेफली काम करें. इनकरेज डिस्कशन, उनके साथ डिस्कशन करना, अगर उनको कोई खतरा है तो वो आपको टाइमली इन्फॉर्म करे. इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इसका ये फायदा हो जाता है कि उनकी आपका और उनके बीच जो एक किस्म का कम्युनिकेशन गैप होता है वो खत्म होता है और उनकी और आपकी कम्युनिकेशन कंसल्टेशन म्यूचुअल कम्युनिकेशन आ जाती है जो कि वर्क प्लेस को मजीद सेफ बनाता है. बूस्ट मोराल, इससे उनका मोराल बूस्ट होता है. प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, इसमें ये हो जाता है कि हर बंदे को उसकी ड्यूटी मिल जाती है, तो हर बंदे को पता होता है कि मेरी क्या ड्यूटी है और अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूँ. रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, और इसके थ्रू आपके एक्सीडेंट्स में खातिर ख्वाह कमी आती है. नोट, सो a toolbox talk should be of maximum 15 or 20 minutes. आपका जो एक toolbox talk है maximum 15 मिनट का होना चाहिए या 20 मिनट्स का होना चाहिए. So toolbox talk क्या है कि आप जब काम शुरू करते हैं आप अपने वर्कर्स को गैदर करते हैं और वहां उनको काम के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आज हमने ये काम करना है और ये हैजर्ड्स हमारे वर्क प्लेस पे अब मौजूद है और हमने इस चीज को अवॉइड करना है और इस चीज को फॉलो करना है. ये हमारा सेफ प्रोसीजर है और ये अनसेफ बिहेवियर्स है. तो आप लोगों ने अनसेफ बिहेवियर्स को अवॉइड करना है और सेफ प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. नेक्स्ट वन इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो मोस्ट ऑफ अस doesn't know about what is ILO, what is International Labour Organization, and what is the purpose of it. So International Labour Organization is a United Nations agency dealing with labor issues, particularly international labor standards, social protection, and decent work opportunities for all. It is established in 1919. It strives to serve as a uniting force between government, businesses, and workers to promote decent work throughout the world. It emphasizes the need for workers to enjoy what? Conditions of freedom, equity, security, and human dignity throughout their employment. In short, कि इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस लिए? वर्कर्स की सेफ्टी के लिए. वो वर्कर्स को उनके सारे राइट्स देता है और ये मेक श्योर करता है कि एक वर्कर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे सेफ है और उसको जिंदगी की तमाम सहूलियात मिल रही है और जितने भी एक वर्कर्स के राइट्स हैं वो उसको कंप्लीटली प्रोवाइड की जा रही है. The next one is reader. What is reader? It is a common terminology in NIBOSH. Reader is the law that requires employers and other people in control of work premises to report and keep records
Now, what should it keep record of? Now, it should keep record of work-related accidents which cause deaths, work-related accidents which cause serious injuries, cases of diagnosed industrial disease, certain dangerous occurrences, and over 7 days incapacitation of our workers. Now, who should submit a reader report? Only responsible person, including employer, the self-employed, and the people in control of work premises should submit reports under reader. In short, the reader should be submitted by either safety officer, supervisor, manager, or any other top manager. तो रीडर क्या है? रीडर एक लॉ है जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग वर्क प्रेमिसेस में कंट्रोल में होते हैं, यानी सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर या मैनेजर, और उनका काम क्या होता है? रिपोर्ट करना और चीजों का रिकॉर्ड बनाना। किन चीजों का रिकॉर्ड बनाना? कि अगर आपके वर्क साइट पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उससे किसी की मौत हो गई, या आपके वर्क साइट पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उससे किसी को बड़ा नुकसान, हाथ कट गया, पैर कट गया, या कोई माजूर हो गया, या आपके वर्क साइट पे कोई बीमारी आ गई, जैसा कि अभी कोरोना गुजरा। तो ऐसी अगर कोई बीमारी आपके वर्क साइट पे आती है तो इन जो लोग इंचार्ज है उनका काम है कि इसको रिपोर्ट करें और इसका रिकॉर्ड रखें। या कोई और एक्सीडेंट हो गया, या इसके अलावा ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपके वर्कर को 7 दिन या 7 दिन से ज्यादा वर्क पे ना आना पड़े, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, तो इस केस में आपने रीडर करना होता है। रीडर क्या है? कि इस चीज को आपने रिपोर्ट करना होता है और रिकॉर्ड में लाना होता है। नेक्स्ट वन इज MSDS or SDS, Safety Data Sheet or Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet क्या है? A Material Safety Data Sheet, also known as Safety Data Sheet, is a detailed information document prepared by the manufacturer or importer of hazardous chemicals. So this is basically related to the chemicals management. It describes the physical and chemical properties of the product. MSDS contain useful information such as flashpoints, toxicity, procedures for spills and leaks, and first aid information regarding any chemical which you are using at your workplace. In simple terms, an MSDS is a paper or electronic document that provides detailed information about the risks of hazardous chemical and advice about safety procedures. MSDS are used not only in the workplace but also for use by environmental health and safety professional. तो MSDS ये एक कागज होता है, या ये एक कागज भी हो सकता है, या ऑनलाइन भी कोई फॉर्म हो सकता है, एक्सेल फॉर्म हो सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिसमें आप हर उस केमिकल का डाटा रखते हैं जो आप अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। उस केमिकल कितना टॉक्सिक है, अगर वो स्पिल या लीक हो जाए तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और अगर आपके किसी वर्कर को लग जाए तो क्या फर्स्ट एड उसके लिए चाहिए होगा, और क्या प्रोसीजर आपने यूज करने हैं उसको कैरी करने के लिए और यूज करने के लिए, और उसकी हर चीज की इन शॉर्ट आप जो केमिकल यूज करते हैं अपने वर्क प्लेस पे उसकी जो सारी डिटेल्स है वो आप अपने मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में रखते हैं और अपने वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं कि ये केमिकल है और ये इतना खतरनाक है, और इससे आपने ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने हैं, और ये प्रोसीजर आपने फॉलो करने इसको यूज करते वक्त या एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते वक्त। नेक्स्ट is purpose of using material safety data sheet. What is the purpose of using material safety data sheet? So the first one is identifying hazards. The hazard is related to the chemicals you are using at your workplace. Protecting workers, making the workers aware of the chemicals and protecting them. Emergency preparation, you are prepared for any sort of emergency due to the chemicals you are using at your workplace. And environmental safety, in case of any spill or leaks, you can save your environment by taking safety procedures or steps. Now, benefits of using MSDS. What are the benefits of using MSDS? Worker safety, compliance with the legal requirements, efficient emergency response. यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप इतने तैयार हो कि आप उसको efficiently टैकल कर सकें. एंड द लास्ट वन, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, और आप अपने वर्कर्स को उन केमिकल्स के लिए ट्रेन कर सके कि उन केमिकल्स को आपने कैसे कैरी करना है, कैसे यूज करना है, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उनको आपने टैकल कैसे करना है. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.